So let us start from very beginning of the chapter, that is definition of differential equation. What is meant by differential equation? The equation which contains at least one derivative term is called as a differential equation. So differential equation कोणाला म्हणू शकतो बेटा आपण? The equation which contains at least one derivative term comma, the equation is called as a differential equation. शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डी, डिफरेंशियल इक्वेशन. ज्या इक्वेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह टर्म प्रेझेंट असते त्याला काय म्हणतो आपण? डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एक्झाम्पल, y is equal to x square plus 3x. Is it called as a differential equation? No, because it does not contain any derivative term. Okay, if I differentiate this equation with respect to x, then derivative of y is dy by dx. X square derivative is 3x derivative is dy by dx equal to 2x plus 3 is called as a differential equation. Is it called as a differential equation? Yes, because it contains one derivative term. So what is meant by derivative term? The term formed after differentiating, called as a derivative term. For example, dy by dx. Dy by dx derivative is d2y by dx square. d2y by dx square derivative is d cube y by dx cube. d cube y by dx cube derivative is d to the power 4y upon dx to the power 4 and so on. So these terms are called as a which terms? Derivative term. If the equation contains these derivative terms, then that equation is called as a differential equation. For example, d2y by dx square plus 3dy by dx plus y is equal to e to the power x. Is it called as a differential equation? Yes, because it contains derivative term like dy by dx, d2y by dx. At least one, कम से कम एक होना चाहिए. मान लेते हैं 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, हो सकते हैं. उसे भी आप क्या बोल सकते हो? डिफरेंशियल इक्वेशन. एक टर्म पाहिजे, कमीत कमी किती टर्म पाहिजे? एक. 2 राहिलं, 3 राहिलं, 4 राहिलं तरी चालेल, त्याला आपल्याला काय म्हणता येईल? डिफरेंशियल इक्वेशन म्हणता येईल. समजलं का बेटा सर्वांना? तर डिफरेंशियल इक्वेशन कोणाला म्हणायचं? ज्या इक्वेशन मध्ये कमीत कमी एक तरी डेरिव्हेटिव्ह टर्म प्रेझेंट असली पाहिजे, त्या इक्वेशनला आपण काय म्हणू शकतो? डिफरेंशियल इक्वेशन. गॉट इट? अरे यस और नो? नाउ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन आता ओळखता येईल कोण सर्वांना? तर डिफरेंशियल इक्वेशन मध्ये कोणत्या टर्म्स दिसतील बेटा तुम्हाला? ह्या डेरिव्हेटिव्ह टर्म्स दिसतील. ज्या इक्वेशन मध्ये ह्या डेरिव्हेटिव्ह टर्म्स प्रेझेंट राहणार त्या इक्वेशनला काय म्हणायचं बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन. These terms are called as a derivative terms because it is obtained by differentiating the equation. Equation ला differentiate केलं, y ला differentiate केलं, काय मिळालं? dy by dx. dy by dx ला differentiate केलं, d square y by dx square. आणि differentiate केल्यानंतर ज्या टर्म्स भेटतात त्याला कोणत्या टर्म्स म्हणतात? डेरिव्हेटिव्ह टर्म. आणि ज्या इक्वेशन मध्ये ह्या डेरिव्हेटिव्ह टर्म्स प्रेझेंट असतात त्या इक्वेशनला काय म्हणायचं आहे तुम्हाला? डिफरेंशियल इक्वेशन. गॉट इट? Okay. Order of the differential equation. Order of the differential equation means what? How many times it derivates. Order of the differential equation means order of differential equation means how many times the given equation differentiates.
many times the given equation differentiates gives us the order of that differential equation. फॉर एक्झाम्पल dy बाय dx मिळालं आपल्याला. सपोज एखाद्या इक्वेशन मध्ये काय आहे dy बाय dx, तर किती वेळा डिफरन्शिएट केलाय? सो ऑर्डर इज 1. सो हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर? चेक हाउ मेनी टाइम्स द गिवन इक्वेशन डेरिवेट्स. सपोज बेटा जर एक्झाम्पल मध्ये dy बाय dx असेल, dy बाय dx, सो इट्स ऑर्डर इज 1. Order is 1. If the equation contains the derivative term d square y by dx square, its order is. If the equation contains d cube y upon dx to the power 3 is equal to, order is 3. For example, d to the power 5y upon dx to the power 5, order is 5. Why order is 5? Because how many times it derivates? 5 times it derivates, so called as a order of that differential equation is 5. Got it? तो ऑर्डर कसं ओळखायचं समजलं का सर्वांना? ऑर्डर ऑफ ए डिफरन्शियल इक्वेशन मीन्स हाऊ मेनी टाइम्स इट डेरिवेट्स. तर किती वेळा तो डिफरन्शिएट केला आहे हे तुम्ही इक्वेशन पाहून सांगू शकता. इक्वेशन मध्ये जे डेरिव्हेटिव्ह टर्म आहे ते चेक करायचे आणि त्यावरून चेक करायचं का तो किती वेळा डिफरन्शिएट केलाय. तर एक वेळा डिफरन्शिएट केला असेल तर ऑर्डर 1 आहे म्हणू, 2 वेळा डिफरन्शिएट केला असेल तर ऑर्डर 2 आहे म्हणू, 3 वेळा डिफरन्शिएट केला असेल तर ऑर्डर 3, 4 वेळा डिफरन्शिएट केला ऑर्डर 4 आहे. सो तो ऑर्डर ओळखता येईल का तुम्हाला आता बेटा? अरे यस और नो? ऑर्डर ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन मीन्स हाऊ मेनी टाइम्स इट डेरिवेट्स. गॉट इट? आणि ऑर्डर आणि डिग्रीवर एक क्वेश्चन पीए टेस्ट 2 मध्ये किंवा सेमिस्टर एक्झामिनेशन मध्ये कन्फर्म विचारला जाईल 2 मार्क्स साठी. फाइंड द ऑर्डर अँड डिग्री ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन. तर तुम्ही पीडी कॉलेजचा पेपर पहा, त्यातही विचारलेलं आहे ऑर्डर अँड डिग्री. येस और नो? सो ऑर्डर जर फाइंड आउट करायचं असेल तर सिम्पली चेक करायचं गिवन इक्वेशन किती वेळा डिफरन्शिएट केलाय, त्याच्यावरून त्याची काय काढता येईल आपल्याला? ऑर्डर काढता येईल. नेक्स्ट, degree of the differential equation. Degree of the differential equation. Degree of the differential equation. What is meant by degree of the differential equation? Power. What is meant by degree? Degree means power of that differential equation. For example, beta d2y by dx square whole cube plus 3 dy by dx whole to the power 4 minus 8y is equal to x. So I am assuming a differential equation and check the order of that differential equation. How many times it derivates? Only one time or two times? 2 times. One time differentiation means dy by dx. 2 time differentiation means d2y by dx. मीन्स जास्तीत जास्त किती वेळा डिफरन्शिएट केला आहे इक्वेशनला? सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरन्शियल इक्वेशन इज 2. गॉट इट? नाउ हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. सो हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन इज 4. बट 4 is not a degree. Highest power is 4. But what is degree of differential equation? The highest power of highest order derivative term. Highest power of highest order derivative term is called as degree of differential equation. So what is degree of differential equation? Highest power. कोणता पॉवर घ्यायचा आहे? हायेस्ट पॉवर. पण कोणाचा? हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह टर्मचा. तर सांगा बेटा दोघांपैकी हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह टर्म कोणती आहे? dy by dx आहे का d2y by dx स्क्वेअर? d2y by dx स्क्वेअर हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह टर्म आहे. याचाच पॉवर म्हणजे काय झालं? डिग्री ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन. सो डिग्री इज
Degree is 3. Degree is not 4. 4 is the highest power. 4 काय बेटा हायेस्ट पॉवर आहे, पण हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह टर्मचा नाही. तो dy बाय dx चा पॉवर 4 आहे. कशाचा पॉवर 4 आहे तो? dy बाय dx चा पॉवर 4 आहे. आणि dy बाय dx आपली हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह टर्म आहे का? नो. So dy by dx is not our highest order derivative term. Hence 4 is not the degree of the differential equation. 3 is our degree of the differential equation. Why 3 is degree of the differential equation? Because it is power of highest order derivative term. इक्वेशन मध्ये सर्वात मोठी जे डेरिव्हेटिव्ह टर्म आहे त्याचाच हायेस्ट पॉवर म्हणजे डिग्री ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन. समजलं बेटा? डिग्री ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये हायेस्ट पॉवर काय असते? हायेस्ट पॉवर. पण हायेस्ट पॉवर कोणाचा? जी हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह टर्म असेल, जी सर्वात मोठी डेरिव्हेटिव्ह टर्म आहे बेटा, त्याचा हायेस्ट पॉवर म्हणजे काय होईल? डिग्री ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन. फॉर एक्झाम्पल बेटा d3y by dx cube plus 2dy by dx whole square plus 8y is equal to 0. So what is the order of this differential equation? The highest order derivative term is 3. So सर्वात मोठी डेरिव्हेटिव्ह टर्म कोणती आहे? d3y by म्हणजे किती वेळा डिफरन्शिएट केलाय त्याला? 3 वेळा. सो ऑर्डर काय झालं? 3. आणि डिग्री 1. तर सर्वात मोठी डेरिव्हेटिव्ह टर्म कोणती आहे? d3y by ds क्यूब. याचाच पॉवर किती आहे? काही नाही म्हणजे काय असतो तो? ऑर्डर किती झाला? समजलं का? याचे 2 मार्क भेटतील का? ऑर्डर आणि डिग्री काढायचे. हे सरळ झालं का? तुम्हाला सांगण्यात आलं का इथे चालले जा. पण पेपर सेटर असं सरळ विचारत नाही. पेपर सेटर काय म्हणतो? राईट मारा, तिथून दुसरा लेफ्ट मारा, तिथून तिसरा राईट मारा, तिथून चौथा राईट मारा, ओके, तिथून तिसरा लेफ्ट घ्या, मग थोडंसं मागे या, मग तिथे आहे. असते बाजूलाच. आणते फिरून असते बाजूलाच. तर मग आता प्रॉब्लेम जर फिरवलं किंवा मग प्रॉब्लेम मध्ये जर ट्विस्ट टाकला तर तो कसा ओळखायचा? ठीक आहे, राईट डाऊन. रूल्स टू फाइंड ऑर्डर अँड डिग्री. रूल्स टू फाइंड order and degree of differential equation. Rules to find order and degree of the differential equation. तर ऑर्डर आणि डिग्री काढण्यापूर्वी ह्या 2 टर्म्स अँड कंडिशन चेक करणं गरजेचं आहे. या 2 टर्म्स अँड कंडिशन जर तुमच्या सॅटिस्फाय होत असेल तर मग तुम्ही काय काढू शकता? ऑर्डर अँड डिग्री ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन. द फर्स्ट टर्म अँड कंडिशन, no one derivative term has power in fraction. No one derivative term has power in fraction. For example beta, derivative term means dy by dx, power fraction means beta raised to the power 2 by 3, square root of dy by dx, square root of dy by dx means beta raised to the power 1 by 2, cube root of dy by dx means raised to the power 1 by 3, d2y by dx square raised to the power 1 by 4. So check the power of the derivative term is in fraction. Power of the derivative term is in fraction. If the power of the derivative term is in fraction, then don't find directly the order and degree of that differential equation. First of all, remove this fraction. So how to remove? Multiply in the power by 3. 3 squaring, square root, cubing, cube root, multiplying in the power by 4. So first of all, remove the fraction power from the remove the fraction from the power. So power मधून काय रिमूव्ह करायचं बेटा? सर्वात पहिले फ्रॅक्शन. तो फ्रॅक्शन जर असेल तर डायरेक्ट ऑर्डर डिग्री काढता येत नाही. म्हणजे इथे पहा बेटा,
कोणत्याही डेरिव्हेटिव्ह टर्मचा पॉवर फ्रॅक्शन मध्ये आहे का? म्हणून डायरेक्ट काय काढलं आपण? ऑर्डर आणि डिग्री. पण ऑर्डर आणि डिग्री डायरेक्ट काढता येणार नाही जर कुठल्याही डेरिव्हेटिव्ह टर्मचा काय असेल? पॉवर फ्रॅक्शन असेल. सो कुठल्याही डेरिव्हेटिव्ह टर्मचा पॉवर जर फ्रॅक्शन असेल तर ऑर्डर आणि डिग्री डायरेक्टली काढता येत नाही. फर्स्ट रूल. सेकंड रूल, no one derivative term is present in denominator of equation. No one derivative term is present in the denominator of equation. For example, 1 upon dy by dx. For example, x square plus 5 upon d2y by dx square. For example, dy by dx is equal to 3 plus sin x upon d2y by dx square. So check beta. In all these three examples, the derivative term is present in the denominator. So if the derivative term is present in the denominator, don't find directly order and degree of that differential equation. First of all, remove this denominator. How to remove? By multiplying dy by dx. dy by dx, dy by dx. By multiplying d2y by dx square. By multiplying d2y by dx square gets cancelled. So multiplying in the powers and multiplying to the equation. So these two methods are used to remove the derivative term from the denominator and fractional power. लक्षात? तर ह्या दोन गोष्टी चेक केल्याशिवाय ऑर्डर आणि डिग्री काढायचं नाही. जे स्टुडंट ह्या दोन गोष्टी चेक न करता ऑर्डर आणि डिग्री काढतील, तुमचं आन्सर बेटा चुकले जाईल. तुमचं आन्सर करेक्ट येणारच नाही. दोन गोष्टी नक्की पाहायचं आहे. कोणत्या कोणत्या बेटा? तर कोणत्याही डेरिव्हेटिव्ह टर्मचा पॉवर काय नसला पाहिजे? फ्रॅक्शन नसला पाहिजे. कुठलीही डेरिव्हेटिव्ह टर्म कुठे प्रेजेंट नसली पाहिजे? कोई भी डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. कोई भी डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो बेटा आप ऑर्डर डिग्री निकाल सकते हो. समझ में आया सभी को? ओके, राइट डाउन एग्जांपल्स. लिख लिया बेटा? ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने के रूल्स लिख लिए सभी ने? नाउ गिव द हेडिंग एग्जांपल्स. एग्जाम्पल्स. सो क्वेश्चन कैसे रहेगा बेटा? देखो, ध्यान दो. नोट डाउन करके हो गया बेटा सभी का? सिर्फ आपको रूल्स लिखना है, एग्जाम्पल नहीं लिखते हो आप फिर भी चलेगा. ठीक है? सो एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? कंपल्सरी 2 मार्क्स के लिए फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री of differential equation x d2y by dx square plus 3 dy by dx plus my is equal to 0. तो बेटा गिवन इक्वेशन को आप लोग ऑब्जर्व करेंगे और मुझे बताएंगे क्या हम लोग इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं? यस और नो? Is it called as a differential equation? Yes. Why? Because it contains derivative term. So the equation which contains at least one derivative term, that equation is called as a differential equation. तो जिस इक्वेशन में एटलीस्ट एक, कम से कम एक टर्म होना चाहिए, 2 रहती है 3 रहती है चलेगा, बट कम से कम एक डेरिवेटिव टर्म जिस इक्वेशन में होती है उसे क्या बोलना है बेटा आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन. समझ में आया सभी को? अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको? ऑर्डर एंड डिग्री. तो ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने से पहले आपको ये 2 रूल जरूर चेक करना चाहिए. पहला रूल, कोई भी डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. सेकंड रूल,
कोई भी डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. नो वन डेरिवेटिव टर्म इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर ऑफ द इक्वेशन. चलो बेटा फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं. कोई भी डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन है क्या बेटा? कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड. कंडीशन नंबर 2, कोई भी डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है क्या बेटा? नो. इट मींस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो क्या लिखेंगे बेटा? Therefore, in the given differential equation, the highest order derivative term, is highest order derivative term कौन सी है बेटा? dy by dx है या d2y by dx square? d2y by dx square ये दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? गिवन इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे और उसमें से सबसे बड़ी जो डेरिवेटिव टर्म है उसे लिखेंगे. सो इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इज d2y by dx. तो d2y by dx स्क्वायर अगर ये सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है तो बेटा मुझे बताइए कितने बार उसको डिफरेंशिएट किया हुआ है? 2 बार. dy by dx 1 टाइम डेरिवेटिव, d2y by dx square 2 टाइम डेरिवेटिव. So order is 2. And what is meant by degree of the differential equation? The highest power of highest order derivative term. तो इनमें से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है बेटा? d2y by dx square. तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या होना चाहिए? पावर कुछ नहीं मतलब पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. नहीं तो गलती से आप 2 लिख देंगे. ये ऑर्डर है बेटा. d2y by dx square क्या है? ऑर्डर है. इसका पावर कुछ नहीं है. कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है. तो ऐसे एग्जाम्पल पेपर में नहीं आते. ये आपको रेडीमेड दिया गया है, लेकिन कुछ पेपर्स में जो 17-16 के पेपर्स थे उसमें आप इस टाइप के एग्जाम्पल देख सकते हो. लेकिन अब जो लेवल बढ़ चुकी है पेपर की, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है, साथ साथ स्टूडेंट का आईक्यू लेवल भी बढ़ रहा है, स्टूडेंट लोगों को सर्विसेज बढ़ रही है, स्टूडेंट लोगों को लोकल रिसर्च ट्यूटोरियल में जाने का मौका मिल रहा है, वहाँ से पूरे बेसिक पढ़ने का मौका मिल रहा है. तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रही है, आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है. यस और नो? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको रेयरली पेपर में दिखाई देंगे, लेकिन रेयरली. थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए. फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी का पावर फ्रैक्शन में हो सकता है कोई डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो. इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हो. ठीक है, राइट डाउन. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2. फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ differential equation d3y by dx cube is equal to k plus dy by dx whole square raised to the power 3/2. So given differential equation is d3y by dx cube is equal to k plus dy by dx whole square raised to the power 3/2. क्या करना है बेटा? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपको फाइंड आउट करना रहेगा, यू मस्ट हैव टू चेक दिस 2 कंडीशंस दैट नो वन डेरिवेटिव टर्म हैज पावर इन फ्रैक्शन एंड नो वन डेरिवेटिव टर्म इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर.
तो ये दो चीजें आपको जरूर चेक करना है व्हाइल फाइंडिंग द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द फर्स्ट कंडीशन इज नो वन डेरिवेटिव टर्म हैज पावर इन फ्रैक्शन। तो चेक कीजिए बेटा, d3y/dx³ का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, यहाँ पे पावर कितना है, लेकिन रेज टू दी पावर क्या है बेटा, तो रेज टू दी पावर 3/2 मतलब डेरिवेटिव टर्म का पावर हो गया आपका फ्रैक्शन में ही। भले ही ये स्क्वायर है लेकिन पावर क्या है बेटा, रेज टू दी पावर। सो 3/2 को हम लोग फ्रैक्शन बोल सकते हैं, यस और नो। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्या, नो वन डेरिवेटिव टर्म हैज पावर इन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन, नो वन डेरिवेटिव टर्म इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। कोई भी डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो है क्या बेटा, कोई डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, पावर फ्रैक्शन नहीं चाहिए। तो बेटा पावर फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो फ्रैक्शन रिमूव करना है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, सो दैट 2 2 गेट्स कैंसल। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मल्टीप्लाइंग इन द पावर, multiplying in the powers by 2 on both side। दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना है दोनों साइड डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, एक साइड आप इम्बैलेंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो d3y/dx³ के पावर में बेटा कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। सो मल्टीप्लाइंग इन द पावर बाय 2, सो 1 into 2 2। समझ में आया बेटा, ये पावर में कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1। तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। और राइट हैंड साइड में भी बेटा पावर में मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 2 से। जैसे कि बेटा होल टू दी पावर क्या है, तो होल टू दी पावर मल्टीप्लाई करना है बेटा 2 से। सो 2 1 जा, सो d3y/dx³, 2 1 जा 2 बेटा, k प्लस dy/dx होल स्क्वायर 2 2। चेक करो बेटा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कोई भी डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन नहीं है। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। तो क्या लिखेंगे बेटा, इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इज कौन सी बेटा, बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, dy/dx है या d3y/dx³ है, d3y/dx³ या फिर d3y/dx³। देयरफॉर ऑर्डर निकाल लेते बेटा, कितने बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, 3 टाइम्स, dy/dx, d2y/dx², d3y/dx³, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया हुआ है। एंड बेटा उसका ही पावर चेक कीजिए, कितना है पावर, 2। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसका ही पावर चेक करना है, कितना है। वैसे तो पावर आप बोलेंगे सर 2 3 6 हो जाएगा ये, तो हाईएस्ट पावर 6 है। हाईएस्ट पावर कितना है, 6। बट वी नीड हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। किसका पावर चाहिए आपको, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का हाईएस्ट पावर। तो दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है, d3y/dx³। तो उसका ही पावर मतलब क्या होगी, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ लगा बेटा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मध्ये हायेस्ट पॉवर नव्हे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मध्ये जी सर्वात मोठी डेरिवेटिव्ह टर्म आहे त्याचा हायेस्ट पॉवर, जी सर्वात मोठी डेरिवेटिव्ह टर्म राहील त्याचा हायेस्ट पॉवर म्हणजे डिग्री। सपोज बेटा d3y/dx³ दोन वेळा प्रेझेंट असतं, एकाचा पॉवर 2 आहे एकाचा पॉवर 3 आहे, तर मग काय घेतलं असतं आपण, काय घेतलं असतं आपण 3, कारण दोन्ही सारखे झाले डेरिवेटिव्ह टर्म। आता दोन्ही हायेस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्ह टर्म सारखे झाले तर मग दोघांपैकी ज्याचा पॉवर हायेस्ट आहे तो घ्यायचा, म्हणून म्हणतो आपण हायेस्ट पॉवर ऑफ हायेस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्ह टर्म। समजलं का बेटा, द हायेस्ट पॉवर ऑफ हायेस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्ह टर्म इज कॉल्ड एज ए डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इजी। तर थोडंसं प्रॉब्लेम मध्ये काय केलं बेटा, ट्विस्ट केलंय। काय केलं, पॉवर कशात दिलेली आहे बेटा,
फ्रॅक्शन मध्ये दिलेला आहे. पण फ्रॅक्शन काढण्यासाठी आयडिया क्लिअर झाली. पॉवर मध्ये पायचं फ्रॅक्शन काय, जसं 3/2 असेल तर कशाने मल्टिप्लाय करायचं, 2 ने. 2/3 असतं तर बेटा 3 ने मल्टिप्लाय केलं असतं. सो दॅट 3 3 कॅन्सल. गॉट इट. राईट. नेक्स्ट एक्झाम्पल. फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नोट करके हो गया बेटा सभी का? यस और नो? ओके. नेक्स्ट नंबर 3. फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री of differential equation. Square root of d3y by dx cube plus dy by dx plus 1 is equal to 0. ठीक है. अब चेक कीजिए बेटा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ d3y by dx क्यूब प्लस dy by dx plus 1 is equal to 0. Which condition is not satisfied? Square root means raised to the power 1 by 2. Square root of means raised to the power 1 by 2. Square root of x means x to the power 1 by 2. Cube root of x means cube root of x means x to the power. Fourth root means 1 by 4. Fifth root means and so on. So square root of d3y by dx cube plus dy by dx transfer this side minus dy by dx plus 1 transfer this side minus 1. So square root of d3y by dx cube, can I take minus common? What we get? dy by dx plus 1 whole bracket close. Because take minus common, so minus gets converted into plus, minus get converted into. In order to remove this square root sign, what we have to do? Squaring both sides. So squaring both sides, square root d3y by dx cube. So square root of left hand side, square root of square of left hand side, square of right hand side. So minus का square बेटा plus and dy by dx plus 1 का square, dy by dx plus 1 whole square. Minus square is plus, minus square is nothing but the plus, minus into minus plus. So minus square is plus and dy by dx plus 1 whole square. तो चेक बेटा, नो वन डेरिवेटिव टर्म हैज पावर इन फ्रैक्शन. कोई भी डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन में है क्या? नो. नो वन डेरिवेटिव टर्म इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर. कोई भी डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है क्या? नो. सो ऐसे सिचुएशन में क्या लिखेंगे बेटा? देयरफॉर इन द गिवन इक्वेशन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इज कौन सी बेटा सबसे बड़ी डेरिवेटिव टर्म? d3y by dx क्यूब या dy by dx, d3y by dx क्यूब. तो देयरफॉर कितने बार डिफरेंशिएट किया हुआ बेटा उसे? 3 बार. और उसका ही पावर चेक कीजिए बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का ही पावर चेक कीजिए. पावर कुछ नहीं मतलब क्या होता है? 1 होता है. तो दिस इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. Order and degree of the differential equation. Hope you got it. समझ में आया बेटा? ऑर्डर एंड डिग्री किसे बोलना है? समझ में आ रहा है सभी को? सो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है?
दो रूल्स चेक करेंगे आप, कोई भी डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फिर आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया बेटा सभी को? यस और नो? तो क्या लिखेंगे बेटा? इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इज, the highest order derivative term is d3y by dx cube, therefore 3 times डिफरेंशिएट किया हुआ है ऑर्डर 3 और उसका ही पावर चेक कीजिए बेटा कितना है। पावर कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं मतलब क्या होता है बेटा? 1 होता है। ओके नेक्स्ट बेटा हो गया बेटा? नोट करके सभी का राइट डाउन। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्क्वायर रूट ऑफ dy by dx, square root of dy by dx is equal to cube root of d2y by dx square. Find order and degree of differential equation, square root of dy by dx is equal to cube root of d2y by dx square. Solution. So given differential equation is square root of dy by dx and cube root of d2y by dx square. So beta, which condition is not satisfying here? No one derivative term has power in fraction. कोई भी डेरिवेटिव टर्म का पावर क्या नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट मींस रेज टू द पावर 1/2, क्यूब रूट मींस रेज टू द पावर 1/2। अब स्क्वायर रूट साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बट स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा, बट व्हाट अबाउट क्यूब रूट? क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्यूब रूट साइन हट जाएगा, बट व्हाट अबाउट द स्क्वायर रूट? तो ऐसे समय पे हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। फॉर एग्जांपल dy by dx का स्क्वायर रूट मतलब बेटा रेज टू द पावर 1/2, d2y by dx स्क्वायर का क्यूब रूट मतलब रेज टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट मींस 1/2, क्यूब रूट मींस। अब बेटा 2 को रिमूव करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रिमूव नहीं होगा। यस और नो? अब 3 को रिमूव करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रिमूव हो जाएगा, बट 2 रिमूव नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे आप एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 2 3 6। सो मल्टीप्लाइंग इन द पावर बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि एक साइड में क्यूब रूट है, एक साइड में स्क्वायर रूट है, एक साइड में फोर्थ रूट है, एक साइड में क्यूब रूट है, ऐसे समय पे बेटा एलसीएम फाइंड आउट कर लिया करो। तो एलसीएम कैसे मिलेगा आपको? 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 3 6। तो बेटा 1/2 1/4 का एलसीएम क्या होगा? 4 2 8 नहीं होगा, 4 होगा। समझ में आया सभी को? एक टेबल में अगर आ रहे हैं तो दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू होती है एलसीएम। कैसे एलसीएम कैसे निकालना? देखो बेटा ध्यान दीजिए, 2 और 4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 1 2 2 2 अगेन 2 1 2 और इन दोनों का 2 2 तो एलसीएम क्या होगा? 4। उसी तरह अगर मुझे एलसीएम निकालना है 2 और 3 का, 2 और
3 का, तो बेटा सबसे पहले मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, अब 3 की जगह पे 1 लाने के लिए 3 1 जा एंड 2 3 जा 6। समझ में आया बेटा? 2 4 8, 2 4 8 है बेटा, एलसीएम बताओ। 2 4 8, 2 4 8 है, एलसीएम बताओ क्या आएगा? 2 4 8, एलसीएम क्या आएगा? 8, जो सबसे हाईएस्ट होगी, क्योंकि 2 4 8 एक ही टेबल में आ रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी एलसीएम। बेटा 3 4, 3 4 एक टेबल में आती है क्या? 3 4 नो, सो 3 4 जा 12 आएगा एलसीएम। समझ में आया? एलसीएम समझ में आया? अगर एक ही टेबल में है तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू एलसीएम, और एक टेबल में नहीं है तो दोनों का क्या करना है बेटा? आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है? So multiplying in the power by 6, so dy by dx raised to the power 1 by 2 into 6, d2y by dx square raised to the power 1 by 3 into 6। तो बेटा पावर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 6 से, तो क्या होगा बेटा? dy by dx raised to the power 2 1 जा 2, 3 जा 6, d2y by dx square 3 1 जा 3, 2 जा 6। अब चेक कीजिए बेटा, किसी का भी पावर फ्रैक्शन में है क्या? नो। कोई डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में है क्या? नो। तो क्या लिखेंगे बेटा? देयरफॉर इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इज, कौन सी बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म? dy by dx है कि d2y by dx स्क्वायर? d2y by dx स्क्वायर। इट मींस कितने बार डिफरेंशिएट किया बेटा इसे? 2 बार, तो ऑर्डर 2 एंड उसका ही पावर चेक कीजिए बेटा कितना है? 2। हाईएस्ट पावर अगर चेक करेंगे तो 3 है। हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री नहीं होता है बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर है d2y by dx स्क्वायर, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। सो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। समझ में आया बेटा? अरे यस और नो? इजी है। सो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अगर सिर्फ स्क्वायर रूट होता तो हम लोग क्या करते बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओनली क्यूब रूट होता तो हम क्या करते? क्यूबिंग बोथ साइड। बट जब भी बेटा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों चीजें रह गए, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जब भी दोनों चीजें रह गए, क्या करेंगे बेटा? आप एलसीएम निकालेंगे। स्क्वायर रूट मतलब 1 by 2, क्यूब रूट मतलब 1 by 3, 2 3 जा, तो पावर में मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6 से। सो ऑर्डर 2 एंड डिग्री इज ऑल्सो 2। नेक्स्ट, हो गया बेटा नोट करके? इधर लास्ट बेंच बॉयज, झालं बेटा लिहून? अरे लिहून झालं का? तो त्याच्यात दुनियेत आहे, कशाचा विचार करत आहे रे? ऑर्डर आणि डिग्रीचा विचार चालू आहे ना? Write down. Next, state order and degree of differential equation. Number 5. State order and degree of the differential equation. State order and degree of the differential equation. Cube root of dy by dx plus y cube root of dy by dx plus y is equal to 4th root of d2y by dx square. State order and degree
of differential equation. So write down solution and tell me which condition is not satisfied. Given differential equation is cube root of dy by dx plus y, fourth root of d2y by dx square. So beta square root means raised to the power 1 by 2, fourth root means raised to the power 1 by 4, cube root means raised to the power 1 by 3, means the power is in fraction. तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पे बेटा कि कोई भी डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, बट यहाँ पे दोनों भी डेरिवेटिव टर्म का पावर क्या है बेटा फ्रैक्शन में। तो पहली टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो पावर में से फ्रैक्शन निकालना है। पावर में से अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, क्यूब रूट को लिखेंगे रेज टू दी पावर 1 by 3, बेटा फोर्थ रूट को लिखेंगे आप रेज टू दी पावर 1 by 4। ओनली क्यूब रूट होता तो हम लोग क्या करते बेटा, क्यूबिंग बोथ साइड। फोर्थ रूट होता तो क्या करते हम लोग, फोर्थिंग बोथ साइड, है ना। बट यहाँ पे फोर्थ रूट और क्यूब रूट साइमल्टेनियस है, तो ना क्यूब रूट कर सकते हो ना आप फोर्थ रूट ले सकते हो। तो क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम लेंगे। 3 और 4 एक टेबल में है क्या बेटा, नो, सो 3 4 जा 12, सो मल्टीप्लाइंग in the power by 12 on both साइड। तो पावर में बेटा आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में एंड यू विल गेट द differential equation having no one derivative term is present in the power fraction, no one derivative term has a power in fraction and no one derivative term is present in the denominator। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर आप लोग निकाल सकते हो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चेक कर लीजिए बेटा और बताइए। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3 करेक्ट है क्या बेटा? ऑर्डर 2 डिग्री 3 करेक्ट है क्या? यस, ओके। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट 115 स्टूडेंट्स, तो बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन हुए आज भी। 115 मतलब कुछ भी नहीं है। सो मल्टीप्लाइंग इन द पावर्स, जैसे कि बेटा मैं यहाँ पे इक्वेशन के पावर्स में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से, इंटू 12 इंटू 12, तो मिलेगा बेटा हमें dy बाई डी एक्स प्लस वाई, 3 1 जा 3 4 जा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 4 1 जा 4 3 जा। सो चेक कीजिए बेटा दोनों इक्वेशन को और बताइए मुझे कि कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है। यस, अब हम लोग ऑर्डर डिग्री निकाल सकते हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन, कोई भी डेरिवेटिव टर्म का पावर क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और कोई भी डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन the highest order derivative term is, highest order derivative term is कौन सी बेटा, d2y by dx स्क्वायर। ये है आपकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे कितने बार इसको डिफरेंशिएट किया है। तो d2y by dx स्क्वायर मतलब कितने बार डिफरेंशिएट किया है बेटा, इसे 2 बार। सो ऑर्डर इज 2 एंड उसका ही पावर चेक करेंगे बेटा, तो क्या मिलेगी आपको, डिग्री।
तो दोनों में से हाईएस्ट पावर तो 4 है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का पावर चाहिए आपको, कितना है? 3 है। सो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3, ऑर्डर 2 एंड डिग्री। कोई दिक्कत बेटा? अरे समझ में आ रहा है क्या? तो कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है? फर्स्ट कंडीशन दैट नो वन डेरिवेटिव टर्म हैज पावर इन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों भी डेरिवेटिव टर्म के पावर क्या है बेटा? फ्रैक्शन में। तो दोनों के पावर अगर आपको साइमल्टेनियस एलिमिनेट करना है तो आप क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। क्यूब रूट मतलब रेज टू द पावर 1/3, फोर्थ रूट मतलब रेज टू द पावर 1/4। तो 3 और 4 एक टेबल में आएगा क्या बेटा? नो। सो 3 4 जा 12, क्योंकि 3 और 4 जो है वो एक टेबल में नहीं आता है। सो एक टेबल में नहीं आने के कारण आप क्या बोलेंगे उसे बेटा? उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? बाय मल्टीप्लिकेशन। मान लेते हैं बेटा 2 और 8 है, तो इनका एलसीएम 8 होगा, क्योंकि 2 और 8 एक ही टेबल में आते। 10 और 20 में से एलसीएम 20। 10 और 15 में एलसीएम कितना? 10 एंड 15। 10 और 15 में एलसीएम निकालना है। देखो बेटा वेरी सिंपल, लिख दो 10 और 15, आपको 1 1 लाना है, ठीक है? तो दोनों को कॉमन डिवाइड किससे होता है बेटा? 5 से। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा। अब 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 आएगा, 2 ही एक ऑप्शन है, 3 को डिवाइड नहीं होगा। 3 की जगह पे 1 लाना है, किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। ये 3 1 जा 3। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 एलसीएम है, और आप बोल रहे हो 150, ठीक है? तो इसलिए एलसीएम निकालना जितना तुम आसान समझ रहे हो कि सर ये तो बच्चों की चीजें है, तो बच्चों की चीजें नहीं है, उसमें भी आप गलतियां कर सकते हो, ठीक है? अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, 10 13, 10 13 एलसीएम इज 10 13 एलसीएम इज, अरे बताओ, 10 13 एलसीएम इज 10 और 13 में बेटा क्या करेंगे? 10 को और 13 को कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो मैं 10 1 जा 13 को डिवाइड कर सकते सिर्फ 13 से। तो 10 इंटू 30, ठीक है? अब बेटा 10 एंड 30, यस, बिकॉज एक ही टेबल में आ रहे हैं, एक ही टेबल में आ रहे हैं बेटा। कौन से टेबल में आएंगे? 10 के 10 1 जा 10, 10 3 जा, 3 को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। सो 10 3 जा। तो दोनों अगर एक ही टेबल में है तो दोनों में से जो हाईएस्ट रहेगी वो होगा आपका एलसीएम। तो होप ये बेसिक क्लियर हो चुका है सभी का, यस और नो? नेक्स्ट नंबर 6, फाइंड ऑर्डर and degree of differential equation. Find order and degree of differential equation dy by dx is equal to k plus d2y by dx square whole to the power 3/2 upon dy by dx। चलो बेटा बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है? ओनली सेकेंड। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। कोई भी डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो देखो बेटा 3/2 फ्रैक्शन है। कोई भी डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। इट मींस दोनों कंडीशन क्या नहीं हो रहे? सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाना है, फ्रैक्शन पावर नहीं हटाना है, सबसे पहले किसको हटाना है? डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, या फिर ये डिवाइड में dy by dx इधर जाके मल्टीप्लाई, ऐसा भी कर सकते हो। तो राइट डाउन
given differential equation dy by dx is equal to k plus d2y by dx square raised to the power अपॉन dy by। तो सबसे पहले बेटा डिवाइड में इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो dy by dx इंटू dy by dx। अरे कौन है वो d2y by dx स्क्वायर वाला? d2y by dx स्क्वायर ही डेरिवेटिव है dy by dx चा। dy by dx चा डेरिवेटिव काय होते? d2y by dx स्क्वायर। डेरिवेटिव काढायचा आहे का तुम्ही? x into x, so dy by dx into dy by dx whole square is equal to k plus d2y by dx square raised to the power। आता चेक करा बेटा, कोणती कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही आहे? फर्स्ट कंडिशन दैट नो वन डेरिवेटिव टर्म हैज पावर इन फ्रैक्शन, सो 3/2 फ्रैक्शन है बेटा। So to remove fraction we have to multiply in the power, multiplying in the power by 2 on both side। दोनों साइड में बेटा पावर में आप 2 से मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा, बताओ। 2 2 जा 4 k प्लस d2y by dx स्क्वेअर। बेटा पावर मध्ये 2 ने मल्टीप्लाई करा, into 2 2 2 cancel, so 2 2 cancel, what we get 3। सो शांततेत प्रॉब्लेम पहा केअरफुली आणि ऑर्डर आणि डिग्री सांगा। शांततेत पहा, शांततेत पहा आणि सांगा मला। ऑर्डर इज इक्वल टू 2, डिग्री इज इक्वल टू 3। वेरी गुड, डोंट टेक डिग्री एज ए 4। वाई 3? a plus b whole cube, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। b cube means d2y by dx square whole cube। a plus b whole cube अगर हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे d2 dy by dx whole to the power 4, a plus b whole cube, a cube plus 3ab square, b is d2y by dx square, so a plus b whole cube, a cube plus 3ab square plus 3a square b, 3a square b, b means d2y by plus b cube, b cube means d2y by dx square whole cube, a plus b whole cube, a cube plus 3ab square plus 3a square b plus b cube। सो एक्सपांड केल्यानंतर काय लक्षात येईल, पॉवर किती मिळेल, किंवा एक्सपांड करण्या अगोदर सुद्धा तुम्ही इमॅजिन करू शकता a प्लस बी होल क्यूब म्हणजे याचा हायेस्ट पॉवर किती येईल। तो एक्सपांड नाही केलं तरी चालते, पण तुम्हाला समजलं पाहिजे, ठीक आहे। तर एक्सपांड का बरं केलं मी, कारण a प्लस बी होल क्यूब a प्लस बी होल स्क्वेअर असेल तर एक्सपांड करू शकता। सो इन द गिवन differential equation the highest order derivative term is d2y by dx square। कोणती आहे बेटा हायेस्ट ऑर्डर? d2y by dx square आणि dy by dx पैकी d2y by dx square। so बेटा how many time it derivates? 2 times, so order is 2 and the highest power of highest order derivative term is, so beta highest order derivative term d2y by dx square, d2y by dx square, d2y by dx square, 3 derivative terms are there। so power is 2, power is 1, power is 2, so highest power among them is, so the highest power of highest order derivative term, highest order derivative term किती आहे? 3। मग या 3 पैकी कोणाचा पॉवर सर्वात मोठा आहे? d2y by dx square whole cube। तर मग म्हणून डिग्री, सो ऑर्डर 2 डिग्री 3। इजी? और यस और नो?